1,77,341 करोड़ रुपीस 35 ईयर्स एंड अबव के पेशेंट्स जो टोबैको की वजह से हुए थे उनके ट्रीटमेंट में लगा। ಬರುವ ಮೇ 31ರಂದು ನಶೆ ಮುಕ್ತ ಬೀದರ್ ಅಭಿಯಾನ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅವತ್ತು ವಿಶ್ವ ತಂಬಾಕು ನಿಷೇಧ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಾಹೀನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮೂಹಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖದೀರ್ ಸರ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೇ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ನ IMA ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನೋದ್ ಸಾವಳಿಗೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಗುರಮ್ಮ ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೇ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಬಸವಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂದಿನ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ IMA ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ವಿನೋದ್ ಸಾವಳಿಗೆ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪತ್ರಕಾರನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Good morning everybody. IMA with collaboration Bidar Nasha Mukta Abhiyan plus Shaheen Group of Institution, Siddhareddy Foundation, so many other foundations are working with this Abhiyan. On 31st May, No Tobacco Day, the World No Tobacco Day is everywhere they are organizing. So in Bidar, we are organizing a awareness program among the students, among the citizens of Bidar, among the shopkeepers, among the from top to bottom of each and everything from the stall to Pandabba, from the main store to Pandabba, we are getting awareness to them. So on that day, we are making an awareness program. So we had made a road map plan on that day from Ambedkar Circle to Basaveshwar Circle to Chobara to Muslim Chowk to again Ambedkar Circle. So I request all the citizens, all the students to come forward to this Abhiyan and let's decide Nasha Mukta Bidar. Once again Nasha Mukta Bidar. So please come on that day, join hands with this Bidar Mukta Abhiyan and IMA. Thank you. नशा मुक्त अभियान समिति बीदर के मोर देन 60 NGOs, ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस मिलकर हम कोशिश कर रहे हैं कि बीदर को नशा मुक्त बनाएंगे, नौजवानों को इस बहुत बुरी लानत से, बीमारी से, बुराई से बचाने की कोशिश करेंगे। ज़ाहिर है इसकी वजह से यूथ हमारे कमज़ोर हो रहे हैं और नौजवानों का, समाज का, देश का बड़ा नुकसान हो रहा है। और तकरीबन बीदर में 3.5 करोड़ का गुटखा डेली सेल होता है, ये कुछ इत्तलात के मुताबिक हमको पता चला। और इंडिया में हर साल 1.35 मिलियन यूथ का डेथ होता है इसकी वजह से। और सिर्फ 2017-18 में 1,77,341 करोड़ रुपीस 35 ईयर्स एंड अबव के पेशेंट्स जो टोबैको की वजह से हुए थे उनके ट्रीटमेंट में लगा। WHO के मुताबिक अगर ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा, इसको ना रोका जाए तो 160 मिलियन यूथ की डेथ होगी। ये 2050 तक का अंदेशा है। सिर्फ तंबाकू को बुरा है बोल के अवेयरनेस करना काफ़ी नहीं है, इसको बंद करने के लिए गवर्नमेंट डिसीजन ले, समाज के लोग आगे बढ़ें, इस बुराई को ख़त्म करने की कोशिश करें। हम एक एक आदमी से रिक्वेस्ट करें, दुकान वाले से रिक्वेस्ट करें, बच्चों से रिक्वेस्ट करें, इंस्टीट्यूशन से काम करें। इंस्टीट्यूशन के करीब में 100 मीटर्स तक टोबैको प्रोडक्ट, सिगरेट, गुटखा या जर्दा वगैरह बेचना इट इज़ ए क्राइम। इसको रोकने के लिए समाज आगे बढ़े। हम दुकान वालों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किराना स्टोर वालों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपने घर के करीब सबसे करीब की दुकान से वाले से रिक्वेस्ट करें
उस कॉलोनी वाले रिक्वेस्ट करें, सब मिलकर रिक्वेस्ट करें कि भाई ये गुटखा बेचकर, ये पॉइज़न बेचकर ही तू कमाएगा और ख़ुद का पेट भरेगा और अपनी औलाद का पेट भरेगा। ये जहर बेचना बंद करो, ये जहर बेचना बंद करो, ये स्लो पॉइज़न बेचना बंद करो, ये बहुत नुकसानदेह है। इसके लिए नो टोबैको, वर्ल्ड नो टोबैको डे के मौके पर शाहीन इंस्टीट्यूशन की तरफ से और तमाम इंस्टीट्यूशन मिलकर 65 NGOs मिलकर एक ह्यूमन चेन बना रहे हैं, जो गावन चौक से होते हुए शाहगंज, अंबेडकर सर्कल, बसवेश्वर सर्कल और चौबारे से वो वंस अगेन गावन चौक को ये लिंक करेगा। इस दौरान एक रैली भी निकलेगी बसवेश्वर सर्कल से, ये ह्यूमन चेन को इनकरेज करते हुए, अवेयरनेस पैदा करते हुए। ये 65 NGOs के ज़िम्मेदार रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें रहेंगे और इस अवेयरनेस को पहुंचाएंगे। हम मीडिया के तमाम लोगों से, समाज के तमाम ज़िम्मेदारों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बुराई को ख़त्म करने में एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए, अपनी नस्ल को बचाइए। ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದೇ ತಿಂಗಳು 31ನೇ ತಾರೀಕು ತಂಬಾಕು ನಿಷೇಧ ದಿನಾಚರಣೆ ಇರೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಹೀನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇವರು ಇದನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಸಮಾಜ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು. ಈ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಳಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲವೂ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡುತ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬ ಕೆಡುತ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಜ ಕೆಡುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಶಾಮುಕ್ತ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ತಂಬಾಕು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಗರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೀಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ 31ನೇ ತಾರೀಕು ತಂಬಾಕು ನಿಷೇಧ ದಿನಾಚರಣೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ರ್ಯಾಲಿ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬರೀ ಪುರುಷರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾಯಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದರ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯುವಕರ ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಬಹಳ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು, ಗೃಹಿಣಿಯರು, ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. 31ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ರ್ಯಾಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಇದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ತಿರುವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಾಗಿದ್ದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಲವಾರು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲದೆ ದೇಶವನ್ನು ದುರ್ಬಲ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಸಮಾಜ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮಾಜದ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದುಶ್ಚಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಅವಶ್ಯ ಇದೆ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಶೆ ಮುಕ್ತ ಬೀದರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖದೀರ್ ಸರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 31ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಗೃಹಸ್ಥರು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇವೆ. को याद है और हम साथ में ये काम करे थे. ये तकरीबन 25 साल पुरानी बात है, 25-27 साल पुरानी बात है. और बीदर में अच्छी कोशिश हुई थी, कामयाब कोशिश हुई थी. और बीदर में गुटखे का सेल 10% को आ गया था. और मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि दुकान वाले गुटखा के ग्राहक आ गया तो दोनों जानिब देख कर, छुपा कर, नीचे से झिझकते हुए, डरते हुए ग्राहक को देकर भेज देते थे, चले जाओ बोल के जल्दी. और 10% को आ गया था. वो काम जो हुआ था इंडिविजुअल कोशिश थी, 2-4 लोग 5 लोग साथ दिए थे और उसका बहुत बड़ा असर हुआ था. लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन साथ में नहीं थे. खुद शाहीन भी उतना कैपेबल नहीं था, लेकिन उसके रिज़ल्ट्स बहुत बड़े आए थे. बीदर में हमारी एक प्रेस मीट हुई थी और दूसरे ही दिन लोकल मीडिया बहुत बड़ा सपोर्ट किया. 3 दिन के बाद भीमन्ना खंडरे साहब असेंबली में क्वेश्चन उठाए थे
और उस वक्त एक कमेटी बनी थी और कमेटी जो है तहकीक करना शुरू करी इसके ऊपर, लेकिन बैन नहीं कर सकी, कुछ कंडीशंस लगा दिए थे। लेकिन इसके 8 दिन के बाद हम हैदराबाद में प्रेस क्लब में एक मीटिंग रखे थे और लकीली वहाँ पर तीसरे दिन असेंबली में क्वेश्चन उठा और आंध्र प्रदेश में गुटखा बैन हुआ था। वो हमारी बीदर की छोटी सी कोशिशों के नतीजे में, और उसी की वजह से आंध्रा के बिजनेसमैन कर्नाटका में, और कर्नाटका का सबसे करीब उनका बॉर्डर करीब तरीन डिस्ट्रिक्ट बीदर में आकर गुटखे के फैक्ट्री शुरू करे, और आज इसकी वजह से बीदर बदनाम हो रहा है। बीदर से जो है गुटखा जा रहा है, हैदराबाद में पकड़ना बोल रहे हैं कि बीदर से ये चीज़ आ रही है। तो इसको बुराई को बुराई बोलना अगर हम शुरू करें तो इसका ज़रूर असर होगा। बुराई को ख़त्म करने के लिए हज़ारों सालों से कोशिशें हो रही हैं, हज़ारों सालों से कोशिश हो रहे हैं, और ये कोशिशें कंटिन्यूस होती रहेंगी। बुराइयां जन्म लेंगी, उसको ख़त्म करने की कोशिश करना ये नेचर है, ये फितरत का तकाजा है। इसके लिए हम बीदर के मोर देन 60 ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर ये काम करना शुरू किए हैं। एक एक बच्चे को समझाना चाह रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व कर रहे हैं। गवर्नमेंट बहुत ही सख्त रसूल बनाई है इसके लिए, वो सारी चीज़ें आवाम के सामने लाना चाह रहे हैं। किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चे को सिगरेट सेल करने वाला, इट इज़ ए नॉन बेलेबल ऑफेंस है, वो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, लेकिन क़ानून हैं। 18 ईयर से कम वाले बच्चे को सिगरेट नहीं बेच सकते, और लूज़ सिगरेट बेचना भी क्राइम है। फ़िलहाल पॉकेट ही लेना है, कंडीशंस लगा रहे हैं। एक ज़माना था कि वो गुटखे के कैंसर होने वाली शक्ल के पम्फलेट हम तकसीम करते थे तो लोग देखकर परेशान होते थे और फ़िक्र करते थे, लेकिन आज हर गुटखे की पॉकेट के ऊपर वो है, देख कर भी खाते हैं। तो हम उस वक्त बोलते थे गुटखा खाओ कैंसर पाओ, कैंसर फ्री है, बच्चों को यतीम करो, माँ बाप को परेशान करो, घर लुट जाएगा, गुटखा खाओ। तो ये चीज़ें रुक रही थी, बीदर से रुक रही थी। लेकिन उस वक्त ज़ाहिर है रेजिस्टेंस उस वक्त भी आया था, हमको पता है रेजिस्टेंस आएगा, आता रहेगा, और हम अच्छाई के लिए सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत को बचाने के लिए, जनरेशन को बचाने के लिए, इस देश के, हमारे देश के नौजवानों को बचाने के लिए। देखिए कोरोना आया था, कोरोना से ज़्यादा गुटखे से जो है तंबाकू से के वजह से नस्ल मर रही है, और सबको पता है। आपको पता है, दुकान वाले के जाके पूछिए कि क्या है, तो सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम ये है। मैं पूछा तो भाई ठीक है, 10 में से 9 नौजवान खाते हैं। आपकी इत्तला के लिए 29% यूथ्स ऑफ इंडिया ये टोबैको प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, और ये बढ़ने का अंदेशा है। अगर ये इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, 160 मिलियन यूथ जो है सालाना मरेंगे, और 1.36 मिलियन लोग सालाना यूथ जो है गुटखे की वजह से, कैंसर की वजह से मर रहे हैं। तो इसके लिए जो है मुसलसल कोशिशें करना है, और ये कोशिशें चलती रहेंगी, और एक के बाद एक लोग आगे बढ़ते रहेंगे, बुराइयों को ख़त्म करने का सिलसिला चलता रहेगा। ओवरनाइट होने वाला काम नहीं है, हमको पता है, इस बात का एहसास है। ये मुसलसल अवेयरनेस के ज़रिए जाएंगे, फिर क़ानून का सहारा लेंगे। हुकूमतों को मजबूर किया जा सकता है। हमारी कुछ बहनें बिहार में ये काम शुरू करे थे, बहनें रोड पर आ गए और हुकूमत मजबूर होकर जो है वहाँ पे शराब को बैन कर दिए, फिर अब गुटखे को बैन करने के लिए बात चल रही है। जब मैं गया था बिहार में, रिसेंटली दौरा करके आया, वहाँ पे बड़े बड़े होल्डिंग गवर्नमेंट की तरफ से लगे हुए हैं, और ये बुराई ख़त्म हो रही है वहाँ पे, और इसके लिए मुसलसल कोशिशें होना चाहिए। एक ज़माना था एन.टी. रामाराव जो है आंध्रा में शराब को बैन करे थे, तो उस वक्त बीदर का बड़ा नाम हो रहा था हैदराबाद में, और बीदर लोग आ रहे थे, बीदर लोग आने वाले बढ़ गए थे। जब कभी भी अगर कोई नशा बंद होती है कोई स्टेट में, तो दूसरे स्टेट का रुख करते हैं। तो इसके लिए पूरे मुल्क को इस बुराई से बचाने के लिए मुहिम चलना चाहिए। देखिए, हम इससे टैक्स हासिल करके फिर इलाज पे उससे 10 गुना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं इस पर। यहाँ तक कि जो है शराब को बेचने के लिए टारगेट दिया जा रहा है कि आपको इतना बेचना ही है। ये आप इसको शराब को बेचकर हमारी हुकूमत को मदद कीजिए। हमको रेवेन्यू चाहिए, हमको समाज की सेवा करना है, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हमको ब्रिजेस बनाना है, और जहर बेचकर, शराब बेचकर रेवेन्यू कलेक्ट करने की बात हो रही है। इस बात को आवाम को समझना चाहिए, इस बुराई को समझना चाहिए, और सब मिलजुल कर ये काम करना है। अवेयरनेस के ज़रिए काम होगा, फिर क़ानून बनेगा,
लोग इकट्ठा होंगे, हमारी माएँ बहनें एजिटेशन करेंगे अपने घरों में, अपने इलाके में। हमारी बहनों से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि आपके इलाके में कोई गुटखा बेचता है तो आप 4 मिलके जाके रिक्वेस्ट कीजिए, देखिए भैया आप अगर ये गुटखा बेचना बंद नहीं करेंगे तो आप पास हम दाल नहीं ख़रीदेंगे, आप पास से हम तेल नहीं ख़रीदेंगे, हमारा बच्चा आके आप पास से स्नैक्स चॉकलेट ख़रीदना बंद कर देगा, मेरा बेटा आपकी दुकान को नहीं आएगा। तो यकीन कीजिए वो समझ जाएगा, वो भी उसको भी एहसास होगा, वो भी एक इंसान है। हमको उम्मीद है कि रफ्ता रफ्ता कुछ लोग आगे बढ़ेंगे, फिर एक दूसरे के इंकरेजमेंट से ये बुराई को हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलता रहेगा।